Hello student, welcome to chemistry class. Now in chemistry class we will study theories in the chemical bonding. What we will study? Theories in the chemical bonding. Okay. What are these theories? There are three theories. One is the valence shell electron pair repulsion theory, and second is the valence bond theory, and third is the molecular orbital theory. All these theories have its own significance in defining the structure of molecule, shape of molecule, stability of molecule. These are things are defined by all these theory: valence shell electron pair repulsion theory, valence bond theory, and the molecular orbital theory. These theories are very important from the examination point of view, and these are very helpful in predicting the shape, geometry, hybridization of the molecule. Okay. First we will see the postulates of this theory, then we will discuss the structure. Okay. According to valence shell electron pair repulsion theory, valence shell electron pair repulsion theory, the geometry of molecule or ion, the geometry. First point is this: the geometry of molecules or ions depends upon the number of atom attached to the central atom. कितने सेंट्रल एटम से अदर एटम जुड़े हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। या अगर हम यहाँ पे लिखें कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच हैं सेंट्रल मेटल से। दूसरी बात क्या कहता है? दूसरी बात कहता है कि to attain the minimum repulsion state, electron pair try to stay far away as possible. Okay, नई बात सुने। To attain the minimum repulsion, to attain the minimum repulsion, to attain the minimum repulsion, atoms are saturated or electron or you can say कि
electron pair stay away, as possible that as possible, you can write as possible. And third one is if the central atom is surrounded by same kind of atom, then interaction will be attraction will be same and geometry will be regular. ज्योमेट्री क्या होगी? रेगुलर होगी। कहने का मतलब क्या है? पहले में कहा गया है कि यहाँ पे ज्योमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल एंड आयन की डिपेंड करती है कि कितने लोन पेयर शेयर हो रहे हैं। अगर 2 लोन पेयर है तो हो सकता है लीनियर शेप हो, 4 लोन पेयर है तो हो सकता है कि टेट्राहेड्रल शेप हो, स्क्वायर प्लेनर शेप हो, 5 है ट्राइगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल हो सकता है, नो डाउट। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल मेटल से कितने एटम और आयन या कितना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है सेंट्रल मेटल के साथ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मिनिमम रिपल्सन, स्टेबल स्ट्रक्चर का मतलब होता है मिनिमम रिपल्सन। अगर मिनिमम रिपल्सन करना है तो एक मैक्सिमम दूरी होनी चाहिए जिससे कि एज पॉसिबल एज रिपल्सिव फोर्स कम से कम हो जाए। अब अगर सेंट्रल मेटल के चारों तरफ सेम काइंड के एटम हैं तो वहाँ सेम अट्रैक्शन और सेम रिपल्सन होगा। और ऐसे केस में जहाँ केवल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ज्योमेट्री रेगुलर होती है, ज्योमेट्री रेगुलर होती है। आई बात सुनने। अब अगर ऐसा हो गया कि डिफरेंट एटम आ गए तो वहाँ पे ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं हो सकता है, दोनों डिफरेंट होंगे। अब हम 4th पॉइंट पे आते हैं। 4th पॉइंट, if different kind of atoms are attached to central atom, then the
the attraction force will be similar attraction will not be similar, and geometry will be not regular. ज्योमेट्री भी यहाँ पे रेगुलर नहीं होगी। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट। अगर डिफरेंट है तो इंटरेक्शन भी डिफरेंट होगा, और अगर इंटरेक्शन डिफरेंट होगा तो उस केस में ज्योमेट्री भी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, ओके, और पांचवा पॉइंट, if all are bonded electron, if central atom is surrounded by, if central atom is surrounded by only bonded electron, then geometry and shape will be regular. And 6, इसके बाद देखते हैं, अगर बॉन्डेड के अलावा वहाँ पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ओके, if central atom is surrounded by bonded electron and non-bonded electron, then safe and geometry will not be regular, will not be same नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर लोन पेयर है, वहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों हैं, तो ऐसे केस में शेप वो नहीं होगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जहाँ पे केवल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6 पॉइंट बता दिए कि विस्पर थ्योरी क्या कहती है। अब विस्पर थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है
कि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन से। एलपी फॉर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन and BP is the bond pair electron. ठीक है, इस तरह के रिपल्सन अगर जहाँ पाए जाएंगे, लोन पेयर भी पाया जाए, बॉन्ड पेयर भी पाया जाए, तो ऐसे केस में जो मॉलिक्यूल का शेप स्ट्रक्चर जो होगा, जो ज्योमेट्री होगी, वो चेंज हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आई विल इरेज दिस, ओके, नोटेड, यस। नेक्स्ट हम आते हैं मॉलिक्यूल जिनके पास केवल बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक चार्ट बनाएंगे और यहाँ पे हम एक दूसरी लाइन खींच लिया हमने, यहाँ सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर, केस में नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल, इसके बारे में लिखेंगे एग्जाम्पल। तो इस चीज़ से क्लियर हो जाएगा कि किसका क्या शेप होता है, किस कंडीशन में होता है। ठीक है, जैसे हम पहला लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक कॉलम छूट गया, चलिए ठीक है। यहाँ पे 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, नो लोन पेयर है, लीनियर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, लीनियर। इसमें जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस शेप का, जैसे एग्जांपल के रूप में CO2, C2H2, H2, BeCl2, ठीक है, ETC। ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल। दूसरा है, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, नो लोन पेयर है, तो ट्राइगोनल शेप आएगा, क्या आएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर।
ट्रायंगुलर प्लेनर। यहाँ पे है ए, यहाँ बी, डी, इस तरह से। और यहाँ पे हमें SO3, BCl3, AlCl3, ये सभी इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, नोट कर लिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, जहाँ केवल 4 बॉन्ड पेयर हैं, 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं। 4 बॉन्ड पेयर, दिस वन इज 2, 3, 4 बॉन्ड पेयर है। तो पहले यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड 4 है, लोन पेयर 0। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप आएगा, टेट्राहेड्रल शेप। ओके, इसका एग्जांपल CH4 और SiF4, TTC, ये सभी जो है यहाँ पे, ये सब के सब जो है कि टेट्राहेड्रल शेप वाले हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं यहाँ पे। NH4+ भी हो सकता है इसमें, NH4+। इसके बाद हमारा फोर्थ शुरू होता है। फोर्थ में 5 के 5 बॉन्ड पेयर है, 5, 0। तो टेट्राहेड्रल अगर शेप देखना है तो कुछ इस तरह से होता है, शुरू से देखते रहिए। ठीक है, इसके बाद ऐसे हो जाएगा, इसके बाद ऐसे और ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया। यहाँ पे हमारा ए है और ये बी है, ये बी है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा शेप आएगा इसके केस में, 5 वाले के केस में? इसका जो शेप है कुछ इस तरह से आएगा। ए अगर बीच में है, बी और बी और डी, उधर ट्राइगोनल, और यहाँ पे एफ लगा हुआ। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। TCl5 सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, TCl5। ठीक है, तो ये तब में होगा जब रेगुलर ज्योमेट्री होगी। क्या होगी? रेगुलर ज्योमेट्री कब आती है? आपके सब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अभी हम जो कुछ भी देख रहे हैं सारा कुछ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब एक लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं। सिक्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 6, this one is the 5, 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर 0। अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल,
ऑक्टाहेड्रल, क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का ये SF6 पहला एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका अगर हमें शेप देखना हो तो हमें इसका शेप देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल का। यहाँ पे ए सेंटर में है, बी 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 बी, यहाँ पे उनका बी, यहाँ पे बी, इस तरह से, ठीक है। ये इसका शेप है। हम चाहें तो यहाँ पे ऐसा ही रख दें, ठीक है। तो यहाँ पे F6 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 F6, अरे सॉरी 6 नहीं होगा, केवल FF, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला केस। कल की क्लास में हम लोग लोन पेयर बॉन्ड पेयर का केस देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।